بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج دنیا کے سارے مسلمانوں کی نظریں صرف ایک انسان پر ٹکی ہوئی ہے، امام مہدی۔ ہر کوئی اس انتظار میں ہے کہ کب امام مہدی آئیں اور مسلمانوں کو قیادت فراہم کریں تاکہ مسلمان پوری دنیا پر حکمرانی کر سکیں۔ لیکن ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ امام مہدی آئیں گے کب؟ کیا امام مہدی کا ظہور صرف مسلمانوں کی کتاب میں ہی لکھا ہے یا پھر دنیا کے مختلف مذاہب کی کتابوں میں بھی امام مہدی کے آنے کی پیشگوئیاں کی گئی ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر امام مہدی آخر کس طرح آج کی اس دنیا میں آ کر دنیا کی سپر پاورز کا مقابلہ کریں گے؟ تو چلیے جانتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان باتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو بالکل نہ چھوڑیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے اندھیری رات کی طرح فتنے آئیں گے۔ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا اور رات کے وقت منافق۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ فتنے عرب میں ہیں، جہاں ہر وقت جنگ چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح میڈیا سب سے بڑا پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے، جس کا کچھ پتہ نہیں کہ کیا سچ ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ لیکن کئی پیشگوئیاں ایسی بھی ہیں جو ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں۔ تو اگلی لائنوں میں جانیں گے کہ وہ کیا پیشگوئیاں ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں اور آپ امام مہدی کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو براہ مہربانی کامنٹس میں اپنی دعاؤں اور خیالات کا اظہار کیجیے اور اپنے پورے نام کے ساتھ دعا کے لیے کامنٹس کریں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے یمن سے ایک انسان نکلے گا جو لوگوں کو سچ اور امام مہدی کی طرف بلائے گا۔ جب وہ نکلے گا تو مسلمانوں کے لیے ہتھیار بیچنا ممنوع ہوگا اور یہ سفیانی کے وقت ہی آئے گا۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو یمن میں حوثیوں کا گروہ ایسا ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، جو کہ خود کو اہل بیت کی نسل سے کہتے ہیں۔ یہ حوثی اسرائیل کے جہازوں کو تباہ کرتے ہیں جو یمن کے قریب سے گزرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ انہی میں سے کوئی ہو۔ یہ جو لفظ ہے مہدی، اس کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، یعنی کہ وہ انسان جو لوگوں کو ظلم سے نکال کر فتح دلائے۔ اور یہ تصور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب لوگ حد سے زیادہ کرپٹ ہو چکے تھے، بت پرستی، کرپشن، ظلم اور ناانصافی لوگوں میں بھری ہوئی تھی، لیکن اس وقت کچھ نیک لوگ بھی زندہ تھے۔ وہ لوگ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو کسی ایسے انسان کو بھیج جو انسانیت کو ایک نیا موڑ دے۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ان لوگوں کو 950 سال تک نصیحت کی، لیکن انسانیت بدترین ہو چکی تھی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ماں سوائے کچھ نیک لوگوں کے۔ تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی اور ہر قسم کے جانوروں کو اپنے ساتھ لے لیا، جس کے بعد ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس نے ان لوگوں کو ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ ایک نئی شروعات کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کئی صدیوں کے بعد پھر سے انسانیت بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ اس وقت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا تھا کہ ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو اللہ کا دوست ہوگا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کو چھوڑ کر توحید کا پیغام دیا اور لوگوں کو ہدایت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی صدیوں کے بعد بنی اسرائیل مصر میں بڑی تعداد میں بڑھنے لگے، لیکن اس وقت مصر پر فرعون کی حکمرانی تھی۔ فرعون کو بنی اسرائیل سے خطرہ محسوس ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور ان پر ظلم کیا۔ کئی سالوں تک بنی اسرائیل پر ظلم ہوتا رہا اور وہ لوگ اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ تو ایسا نبی بھیج جو ہمیں اس غلامی سے آزاد کرے۔ تو اللہ نے ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو شکست دے کر بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی صدیوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا۔ اس وقت بنی اسرائیل فلسطین میں رومی سلطنت کے زیر تسلط تھے
और वहां के करप्ट मजहबी पेशवा थे। कई वक्त तक उनमें कोई नबी नहीं आया था। बनी इसराइल एक मसीहा के इंतजार में थे और उनकी किताबों में भी उसके आने की खबरें थी। आज भी बाइबल मौजूद है। फिर वो मसीहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में आया, लेकिन फिर भी बनी इसराइल ने उनके खिलाफ साजिशें की, तो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब अरब में बुराई आम हो चुकी थी, तो उस वक्त यहूदियों की किताबों में एक अजीम नबी के आने की खबरें लिखी गई थी, और उस वक्त यहूदी भी उस नबी का उसी तरह इंतजार कर रहे थे जैसे आज मुसलमान इमाम मेहदी का इंतजार कर रहे हैं। यहां तक कि आज भी बाइबल में वो पेशगोइयां लिखी है। इसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। तो ये जो मसीहा का तसव्वुर है, ये बनी इसराइल में पहले से मौजूद था। इसी वजह से इस्लाम के एक अजीम स्कॉलर और शायर अल्लामा इकबाल भी इमाम मेहदी के इस तसव्वुर को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि ये तसव्वुर मुसलमानों ने यहूदियों और ईसाइयों से लिया है। जब अब्बासी खिलाफत के दौर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, तो मुसलमानों में यह तसव्वुर फैलने लगा कि बहुत जल्द एक मसीहा आएगा जो सब कुछ ठीक कर देगा। अल्लामा इकबाल का कहना था कि मुसलमानों का किसी मसीहा के इंतजार में जुल्म सहना बहुत खतरनाक है। इसी वजह से वो इमाम मेहदी के इस तसव्वुर को नहीं मानते थे। सिर्फ अल्लामा इकबाल ही नहीं, बल्कि इब्न खुल्दून जो कि एक स्कॉलर और फलसफी थे, वो भी इमाम मेहदी से मुतालिक हदीस की सनद से मुत्तफिक नहीं थे। लेकिन अगर देखा जाए तो इमाम मेहदी से मुतालिक हदीस तकरीबन हर बड़ी हदीस की किताब में मौजूद है, सिवाय बुखारी और मुस्लिम के। सुन्नी और शिया दोनों किताबों में कई अहदीस मौजूद हैं, वो भी बिल्कुल सही सनद के साथ। सिर्फ इस्लाम ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर बड़े मजहब की किताबों में एक मसीहा के आने की पेशगोइयां मौजूद है। जैसे कि मेसोपोटामिया में एक चरवाहे का जिक्र मौजूद है जो मसीहा होगा, और मिस्र में ओसरेस नाम के इंसान का जिक्र मौजूद है जो जमीन को दोबारा जिंदा करेगा। इसी तरह जरतशी मजहब में एक जरतशरा नाम के इंसान का जिक्र है जो आखिर वक्त में पैदा होगा और एक बड़ी जंग लड़ेगा। इसी तरह हिंदू कल की अवतार को मानते हैं जो कि कलयुग के वक्त आएगा। वो सफेद रंग के घोड़े पर सवार होगा और उसके हाथ में तलवार होगी जो जुल्म के खिलाफ लड़ेगा और पूरी दुनिया में दीन फैलाएगा। बुद्ध मजहब में भी एक मात्रिया नाम के इंसान का जिक्र मौजूद है जो उस वक्त आएगा जब लोग दीन से फिर जाएंगे। वो सच फैलाएगा और दुनिया को सीधी राह दिखाएगा। इसी तरह यहूदी भी अपने मसीहा को मानते हैं जो कि मुस्तकबिल में आने वाला है, लेकिन उनका वो मसीहा दज्जाल होगा जो उन्हें क़यादत देगा और तीसरा हैकल बनाएगा। वही ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल को मानते हैं जिन्हें मुसलमान भी मानते हैं। तो ये मसीहा का तसव्वुर हर मजहब में मौजूद है, और इस्लाम में भी इमाम मेहदी का तसव्वुर खुद तख्लीक नहीं किया गया, बल्कि ये सही हदीसों में मौजूद है। यहां तक कि अमेरिका के सदर जो बाइडन भी इमाम मेहदी के बारे में जानते हैं। I did not know the difference that exists. I did not know what the hidden imam is. यानी मैं नहीं जानता था जो फर्क मौजूद है। मैं नहीं जानता था कि छुपे इमाम का क्या मतलब है। और नेतन्याहू भी ये जानते हैं कि मुसलमान दोबारा खिलाफत कायम करेंगे। They don't want any Western presence. Guess what? They have dreams. यानी वो कोई मगरिबी मौजूदगी नहीं चाहते। सोचो क्या, उनके पास ख्वाब है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इमाम मेहदी इस दुनिया की बड़ी ताकतों का मुकाबला किस तरह करेंगे, जिनके पास जदीद हथियार है और जो इस पूरी दुनिया की मईशत को कंट्रोल करते हैं। उनके पास आज के हर मुसलमान का डेटा मौजूद है। आखिर एक इंसान किस तरह इन सबको शिकस्त देगा, जबकि इमाम मेहदी के इस दुनिया में आने से पहले हालात और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। शाम में जुल्म हो रहा होगा जो आज भी हो रहा है। दज्जाली निजाम आ चुका होगा। ग्रेटर इसराइल बन चुका होगा, जैसे खुद नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के सामने दिखाया है। फिर मशरिक़ वस्ता में तब्दीलियां आएंगी और हम वो मुमकिनात लेकर आएंगे। करप्शन, जुल्म, नाइंसाफी लोगों में भरी हुई होगी, लेकिन उस वक्त कुछ नेक लोग भी जिंदा थे। वो लोग अल्लाह से दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, तू किसी ऐसे इंसान को भेज
जो इंसानियत को एक नया मोड़ दे। तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने उन लोगों को 950 साल तक नसीहत की, लेकिन इंसानियत बदतरीन हो चुकी थी। उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, सिवाय कुछ नेक लोगों के। तो अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की और हर किस्म के जानवरों को अपने साथ ले लिया, जिसके बाद एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसने उन लोगों को खत्म कर दिया। और इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने पैरोकारों के साथ एक नई शुरुआत की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कई सदियों के बाद फिर से इंसानियत बुत परस्ती में मुब्तला हो गई। उस वक्त की किताबों में यह भी लिखा था कि एक ऐसा इंसान आने वाला है जो कि अल्लाह का दोस्त होगा, जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती को छोड़कर तौहीद का पैगाम दिया और लोगों को हिदायत दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कई सदियों के बाद बनी इसराइल मिस्र में बड़ी तादाद में बढ़ने लगे, लेकिन उस वक्त मिस्र पर फिरौन की हुक्मरानी थी। फिरौन को बनी इसराइल से खतरा महसूस हुआ और बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया और उन पर बहुत जुल्म किया। कई सालों तक बनी इसराइल पर जुल्म होता रहा और वो लोग अल्लाह से दुआएं करते रहे कि तू ऐसा नबी भेज जो हमें इस गुलामी से आजाद करे। तो अल्लाह ने उनकी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को शिकस्त देकर बनी इसराइल को आजाद किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कई सदियों के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त आया। उस वक्त बनी इसराइल फलस्तीन में रोमन सल्तनत के ज़ेर तसल्लुत थे और वहां के करप्ट मजहबी पेशवा थे। कई वक्त तक उनमें कोई नबी नहीं आया था। बनी इसराइल एक मसीहा के इंतजार में थे और उनकी किताबों में भी उसके आने की खबरें थी, जो आज भी बाइबल में मौजूद है। फिर वो मसीहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में आया, लेकिन फिर भी बनी इसराइल ने उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। तो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। बनी इसराइल फलस्तीन में रोमन के ज़ेर तसल्लुत थे और करप्ट मजहबी पेशवा उनके इमाम थे और कई वक्त से उनमें कोई नबी नहीं आया था। बनी इसराइल एक मसीहा के इंतजार में थे और उनकी किताबों में भी उसके आने की खबरें लिखी थी, जो कि आज भी बाइबल में मौजूद है। और फिर वो मसीहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में आया, लेकिन फिर भी बनी इसराइल ने उनके खिलाफ साजिशें की। तो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब अरब में बुराई आम हो चुकी थी, तो उस वक्त यहूदियों की किताबों में एक अजीम नबी के आने की खबरें लिखी गई थी और उस वक्त यहूदी भी उस नबी का उसी तरह इंतजार करते थे जैसे कि आज मुसलमान इमाम मेहदी का इंतजार करते हैं। यहां तक कि आज भी बाइबल में वो पेशगोइयां लिखी हैं। और फिर इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। इसी तरह हिंदू कल की अवतार को मानते हैं, जो कि कलयुग के वक्त आएगा। वो सफेद रंग के घोड़े पर सवार होगा और उसके हाथ में तलवार होगी, जो कि जुल्म के खिलाफ लड़ेगा और पूरी दुनिया में दीन फैलाएगा। बुद्ध मजहब में भी एक मात्रिया नाम के इंसान का जिक्र मौजूद है, जो कि उस वक्त आएगा जब लोग दीन से फिर जाएंगे। वो सच फैलाएगा और दुनिया को सीधी राह दिखाएगा। इसी तरह यहूदी भी अपने मसीहा को मानते हैं, जो कि मुस्तकबिल में आने वाला है, लेकिन उनका वो मसीहा दज्जाल होगा, जो कि उन्हें क़यादत देगा और तीसरा हैकल बनाएगा। वही ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल को मानते हैं, जिन्हें मुसलमान भी मानते हैं। तो ये मसीहा का तसव्वुर हर मजहब में मौजूद है और इस्लाम में भी इमाम मेहदी का तसव्वुर खुद तख्लीक नहीं किया गया, बल्कि ये सही हदीसों में मौजूद है। आगे की वीडियो में जानेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इमाम मेहदी के आने से पहले कौन सी ऐसी निशानियां हैं जो पूरी होंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमाम मेहदी से पहले जमीन जुल्म से भर जाएगी, जो कि आज होता नजर आ रहा है। फलस्तीन, शाम, इराक, अफगानिस्तान, यमन और कश्मीर, इन सब जगहों में जुल्म हो रहा है। और किस तरह करप्ट हुकूमत मुस्लिम ममालिक पर हुक्मरानी कर रही है, जिन्हें कंट्रोल यहूदी कर रहे हैं। सूद आज पूरी दुनिया की मईशत बन चुका है। मुसलमानों को दहशतगर्द समझा जाता है।
स्कॉलर्स रियाल के लिए दीन बेच रहे हैं। यकीनन जमीन जुल्म से भर चुकी है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमाम महदी के आने से पहले अंधेरी रात की तरह फितने आएंगे। इंसान सुबह के वक्त मोमिन होगा और रात के वक्त मुनाफिक। और आज आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा फितने अरब में है, जहां हर वक्त जंग चलती रहती है। इसी तरह मीडिया सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जिसका कुछ पता नहीं कि क्या सच है और झूठ क्या है। लेकिन कई पेशगोइयां ऐसी भी हैं जो अभी पूरी नहीं हुई है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मशरिक से एक बहुत बड़ी आग निकलेगी, जो कि 3 रातों तक देखी जाएगी। लोग उसे देखकर खौफ का शिकार हो जाएंगे। अब ये आग एक न्यूक्लियर धमाका भी हो सकता है, जैसे कि ईरान, जो कि अरब के मशरिक में है, वो खुफिया तौर पर न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। तो हो सकता है कि ईरान एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट करे, क्योंकि अमेरिका और इसराइल सब ईरान के न्यूक्लियर हथियारों के बनाने से डरे हुए हैं। तो अगर ईरान ने यह न्यूक्लियर धमाका किया तो इससे वाकई लोग डर जाएंगे। और जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यह आग 3 दिनों तक जारी रहेगी। इसका मतलब यह है कि मीडिया भी इसकी कवरेज करेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि इमाम महदी के ज़हूर से 15 दिन पहले एक इंसान को काबे के करीब कत्ल किया जाएगा। उसका नाम नफ्से ज़किया होगा। ये इंसान गालिबन एक इस्लामी एक्टिविस्ट होगा, जो कि लोगों को सच बताने की कोशिश करेगा, लेकिन सऊदी हुकूमत शायद उसे कत्ल करवा देगी। तो ये कुछ ऐसी निशानियां हैं जो इमाम महदी के आने से पहले पूरी होंगी, लेकिन ये निशानियां भी बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिर वक्त में कयामत की निशानियां इस तरह पूरी होंगी, जैसे कि तस्बीह टूटने के बाद उसके दाने एक के बाद एक गिरते चले जाते हैं। तो हमारी अगली वीडियो में इसी डॉक्यूमेंट्री के हवाले से मजीद अहम मालूमात आएंगी। लिहाजा आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके बाद आप मजीद अहम मौज़ूआत के बारे में जान सकेंगे। जो अच्छी लगी होगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।